حقوق العباد کا بوجھ۔ یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ میرے گھر کے فون پر فون کرنے والے کا جلی ہندسوں میں نمبر آ جاتا ہے اور نام بھی، کیونکہ اس میں نمبر نام کے ساتھ ریکارڈ کرنے کی سہولت ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا فون ہے، اور اب مجھے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ میں نمبر دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں یا نہ کروں۔ ایک ہمارا بہت ہی گپی دوست ہے، وہ لمبی بات کرتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ۔ اس کا نام آئے تو میں کہتا ہوں کہ میں فون نہیں اٹھاتا، یہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، جان نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے کچھ اور ایسے نمبر ہیں جن کے اوپر دل نہیں ٹکتا کہ ان کو رسپانس دیا جائے یا ان سے بات کی جائے، اور جب مجھے کسی پسندیدہ ٹیلی فون کی آمد کا پتہ چلتا ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ پرسوں ترسوں میری پوتی نے اسلام آباد سے فون کیا تو میں نے ٹیلی فون اٹھاتے ہی اور اس کی ہیلو سے پہلے ہی کہا، ہیلو مایا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، دادا آپ بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مایا فون کر رہی ہے یا اس کا ابو کر رہا ہے، اس سے میں پہچان جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک اعلیٰ درجے کا سسٹم ہے۔ اس نے کہا، دادا یہ اعلیٰ درجے کا آئی ڈی کالر نہیں ہے جس کی آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اس نے مجھے بڑی آسانیاں عطا کر دی ہیں اور میں آسائش میں ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے بولتی تو نہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ فون کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی اگر اس کے اوپر گاڈ آلمائٹی کالنگ آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس طرح آپ کا کالر آئی ڈی اچھا نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کان سے فون لگا لے اور پتہ چلے کہ کون ہے۔ میں نے کہا، اگر اللہ میاں کا فون بھی آئے تو ابھی تک تو آیا نہیں، مجھے پتہ نہیں میں کیا کروں، لیکن اگر آیا اور میں کام میں مصروف ہوا تو مجھ میں ایک خرابی ہے، جیسے ہمارے سارے ساتھیوں میں ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ بہت مشغول ہوتے ہیں اور عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن دراصل میں بچی کی بات سن کر ڈر گیا۔ میں نے اپنے طور پر سوچا اور اس کو نہیں بتایا۔ آپ کو خفیہ طور پر بتاتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ میاں کا فون آئے تو میں کہوں گا، اللہ میاں میری ابھی 4 سنتے رہتی ہیں، وہ پڑھ لوں تو پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ حالانکہ وہ سنتیں بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت اہم ہے، اللہ کی ذات سے بھی، جس نے مجھے عبادت کا حکم دیا ہے اور جس نے اپنے آپ کو برائے عبادت ٹھہرایا ہے۔ یہ غلط قسم کا خیال میرے ذہن میں آیا کیونکہ میری تربیت اور طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام بعد میں کرنا ہے۔ تو مایا نے مجھے کہا کہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس کا اللہ میاں فون آ جانا ہے اور آپ سے کوتاہی ہو جانی ہے، اس لیے آپ الرٹ ہو جائیں اور بہتر یہ ہے کہ سی ایل آئی یا کالر آئی ڈی اتروا دیں، ایسے ہی رہنے دیں جیسا پہلے تھا۔ یہ واقعی میرے لیے اس سے مشکل پڑ گئی۔ ایسے ہی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، عشاء کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر آیا تھا، اور وطروں کے بعد آدمی کچھ اور طرح کا ہوتا ہے کہ یہ صبح پڑھنے چاہیے یا کچھ آتا رہتا ہے بدستور خیال، لیکن آدمی اس میں مصروف رہتا ہے۔ عشاء کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے۔ میرے پڑوسی کے چوکیدار نے آ کر کہا، یہ گرمیوں کا واقعہ ہے کہ وہ سب میرے پڑوسی حاجی صاحب فیملی تو گئی ہوئی ہے مری، صرف چھوٹے صاحب شاہد میاں جو 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ گھر پر ہے۔ چوکیدار کہنے لگا کہ پتہ نہیں اچانک اسے شاہد کو کیا ہوا کہ وہ پہلے تو تشنج میں مبتلا ہوئے اور پھر تڑپے اور پھر اچانک بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہسپتال لے جانا ہے، میں اکیلا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا، دیکھو میاں، میں اپنی نماز ختم کر لوں پھر دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میں نماز پڑھ چکا تو میں نے اپنے سلیپر پہنے، پنکھا بند کیا، پھر آرام سے باہر گیا کہ اسے پوچھوں کہ شاہد کو کیسے لے جانا ہے۔ باہر نکلا تو پتہ یہ چلا کہ چوکیدار نے بتایا کہ ہم اسے لے گئے، یہاں ایک پنو نام کا گدا گاڑی والا ہے جو لڑکے سے بورے میں رکھ کر چھلیاں مکئی کے سٹے بیچتا ہے۔ اس کی گدا گاڑی میں رکھ کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہسپتال والوں نے ٹیکا ویکا دیا اور انہوں نے کہا ہے
कि उसे यहीं छोड़ जाओ। कल सुबह हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन खैरियत है, आपने उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, वरना मुश्किल पड़ जाती। मैंने चौकीदार से कहा कि चलो ये अच्छा हुआ। माया ने पूछा, पता नहीं उसे कशिफ होता है कि आपको अल्लाह मियाँ का फोन आया है सीएलआई पर? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कहने लगी कि दादा आया था, लेकिन आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल आया, और बड़ी वजाहत के साथ आया, और उसने आपको हुक्म दिया कि ये करो। मैंने कहा, तुझे ये कैसे मालूम है? कहने लगी कि मेरी एक तार आपके साथ भी तो लगी हुई है। उसे पूरा वाकया को तो नहीं पता, लेकिन उसका दिल कहता था। फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा वाकया गुजरा था। उसने कहा कि देखिए, आपने उसका फायदा नहीं उठाया पूरा। आप छोड़ देते नमाज, फिर पढ़ लेते, आके पढ़ लेते, अगले दिन पढ़ लेते। ये तो आपने बड़ी ज्यादती की। उसने ये मजबूरी मेरे साथ वाबस्ता कर दी कि मैं उसे उतरवा दूं, और मैं हर कॉल को मौसूल करूं। अब कैफियत ये है कि वो वैसे ही लगी हुई है, और मुझे फोन करने वाले का पता भी चल जाता है। लेकिन कोताही उसके साथ साथ ही रहती है कि मैं एक नज़र देखकर कहता हूँ कि ये फोन सुनने वाला नहीं है, लेकिन अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। जिंदगी में और भी काम होते हैं, लेकिन इंसानों से मुतालिक जो काम होता है उसका बोझ बहुत ज्यादा होता है। वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उठाया नहीं जाता। फिर ऐसे ही मेरी पोती के कहने के मुताबिक एक कॉल ही कह लीजिए उसे और आ गई। वो भी काफी मुश्किल थी, और मैं ये समझता रहा कि मैं हक पे जानिब हूँ। हुआ ये कि जिस घर में मैं रहता हूँ उससे दो तीन घर छोड़कर एक बहुत बड़ी कोठी है, और उसमें बहुत मुअज्जज लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं। पिछले दिनों जब इलेक्शन का काम चला और इलेक्शन में ये खुशखबरी सुनाई गई कि बहुत सारी खवातीन को भी एमपीए और एमएनए बना दिया जाएगा और मुबारक हो, इस घर के बाहर एक बड़ा जमघटा लग गया। खवातीन आती रहीं जाती रहीं, कारें आती जाती रहीं, तो मुझे अंदाजा था कि वो मिसेस अकरम भी एमपीए होने की आरजूमंद हैं या एमएनए होने की हैं। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी खुशी हुई कि चलो हमारे इलाके की एक बीबी हो जाएगी, और ये भी वहां जाकर डेस्क पे जाएगी मुस्कुराते हुए। एक दिन ये हुआ, उस दिन मैं साहिवाल जा रहा था अपनी हमशीरा के पास। हुआ ये कि उन्होंने, मिसेज अकरम ने, बहुत बड़ी दावत का बंदोबस्त किया, और इसमें उम्मीदवार खवातीन जो एमएनए और एमपीए शिप की थीं वो आईं। बहुत मुअज्जज लड़कियां, कलरफुल किस्म के कपड़े पहने हुए। उसने आला दर्जे के खाने भी तैयार किए हुए थे। उनमें एक खाना शामी कबाब भी थे। कहा जाता है कि वो बहुत ही अच्छे बने हुए थे। वो शामी कबाब उनके खानसामा ने बनाकर बजाय मेज के ऊपर रखने के, मेज के नीचे रख दिए। उनका कुत्ता जैकी, बहुत छोटा सा प्यारा कुत्ता, वो आया, और उसने जनाब एक शामी उठाया और आधा तो गट गट करके खा गया और आधा मुंह में दबाकर खड़ा था कि मालकन और दीगर पैरे खानसामा आए और देखा तो कहा कि रोको उसको, पकड़ो पकड़ो। खैर, कुत्ता उनकी नजरों के सामने खा गया या खराब कर गया। अब असल दावत शुरू हुई। जाहिर है खवातीन खुशखबरियों में मसरूफ होंगी, अपने सुनहरे मुस्तकबिल की बातें कर रही होंगी, प्रोग्राम तय कर रही होंगी कि कैसे सियासत में जाना है और असेंबली में किधर से दाखिल होना है। यकीनन ऐसी बातें हुई होंगी। जब वो खा रही थी और इख्तिताम को पहुंची और स्वीट डिश खा रही थी, तो उनके माली ने आकर रोते हुए ये कहा कि जैकी मर गया है और वो सड़क के ऊपर मरा पड़ा है। अब मालकिन जान गई कि उसने जो कबाब खाया है उसमें कोई जहरीली चीज थी। घर की मालकिन ने कहा कि सब दौड़ो भागो अल्लाह के वास्ते। सब ने बतरफ अस्पताल मोटरों में छलांगे लगा दी। वहां उनके गलों में लंबी लंबी नालियां डालकर उनकी वॉशिंग शुरू की गई। जितना अच्छा खाना खाया था वो तीन मुख्तलिफ अस्पतालों ने निकाला, और सब ने दुआ की कि या अल्लाह, हम अगर जिंदा सलामत बच जाएं तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर ने भी कहा कि अब खतरे की कोई बात नहीं। बेगम साहिबा ने खुशी में दो देगे दाता साहब भिजवाएं कि अल्लाह तेरा फजल है कि मैं इस नागहानी मुसीबत से निकल आई। मैं ये हंगामा देखकर ही साहिवाल जा रहा था अपनी गाड़ी में।
वहां किसी वक्त मुकर्ररा पर जाने की भी जरूरत नहीं थी। मैं वहां 5, 10, 15 मिनट के लिए रुक भी सकता था, लेकिन मैं चला गया और दूसरे तीसरे दिन वहां से वापस आया। वापस आकर मैंने मिसेज अकरम से कहा कि बड़ा अफसोस है, मुझे आपके कुत्ते का अफसोस करना था, वो आपका इतना प्यारा कुत्ता था। उसने कहा कि हाँ भाई साहब, ये हमारे साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं वहीं खड़ा था जब वो ट्रक बैक कर रहा था। ट्रक बैक करते हुए ट्रक का लोहा कुत्ते के सर पर लगा और वहीं चूं करके खत्म हो गया। मुझे उन लोगों को जाकर बता देना चाहिए था कि ये कुत्ता किस वजह से फौत हुआ है, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। मेरी पोती माया कहती है कि दादा, एक ट्रंक कॉल आपको और आ गई है अल्लाह मियाँ की, वो भी मिस हो गई, इसलिए कि आपको ये बात उन तक पहुंचानी चाहिए थी। कोई सी अच्छी बात हो, खैर की बात हो, ये बताई जानी चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए। उन्हें पहली मर्तबा कोई यमन से आए थे। उन्होंने पता नहीं किस सहाबी को देखा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपके ये सहाबी बड़े अच्छे लगते हैं। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात बता दी है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने तो शर्म से ऐसा नहीं किया। वो सहाबी इस वक्त तक जा चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप भागकर उनके पीछे जाएं और उन्हें गले मिलें और बताएं कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका इजहार किया जाना बहुत जरूरी है। हम जो झूठी मूठी शर्मिंदा से होकर खड़े हो जाते हैं, आप जरूर कहें अपने पड़ोसी से, हमसाए से, आपका फलां बच्चा मुझे प्यारा लगता है। और उससे भी कहें कि माशाल्लाह बेटे, आप किसके बेटे हैं? वो कहेगा कि जी मैं शमसुद्दीन का बेटा हूँ। वो क्या करते हैं? वो कहेगा कि वो ये करते हैं। आप इससे कहें बेटे, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। कहाँ पढ़ते हैं? फलां फलां। ये बात की जानी चाहिए, अपने तक महदूद नहीं रखनी चाहिए। ना कि मेरी तरह से, अगर मैं साहिवाल जाने से पहले उन्हें सब कुछ बता देता तो आगे इतनी बड़ी कहानी ना चलती और इन बेचारियों का इतना अच्छा खाया हुआ खाना यूं टूंटियां डाल डाल कर ना निकाल दिया जाता। तकलीफ दे बात है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह बड़े बड़े अंदाज में, बड़े रूप में आपके पास आता है, मेरे पास आता है, और वो इस बात का तकाजा करता है कि जो कुछ उसने फरमा दिया है उसके मुताबिक अमल किया जाए, और बिल्कुल यूं महसूस होता है कि वो देख रहा है। लेकिन हमने अपनी जात के साथ ऐसी CLI लगाई हुई है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी यूं ही अल्लाह का वहां नंबर आता है तो हम कहते हैं कोई नहीं, फिर उनसे बात कर लेंगे, पहले ये दुनियादारी का काम पूरा कर लें, इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें ज्यादा नफा है। अल्लाह की बातें तो होती ही रहेंगी, आज नहीं तो कल पूरी हो जाएंगी। और इस CLI का यकीनन कोई फायदा नहीं जो मुझे और आपको इस राह से रोकते कि हमारा रास्ता निहायत फूलों भरा और गुल फरोशों की गली बना हुआ है। इसमें से ना गुजरें और अटक कर बैठे रहें। छोटी छोटी बातें ख्वातीन और हजरात, जब आप उन पर गौर करें या गौर ना भी करें, अकेले बैठे हुए सोचें, तो आपको इसमें से बड़ी अच्छी फुलझड़ियां, बड़े फूल और शगुफे नजर आने लगेंगे। आप इस पर अमल ना भी करें, लेकिन उससे वाबस्ता होकर बैठ रहना और बैठने की आदत डालना, और इस शऊर के साथ कि मैं इस अल्लाह की धरती, इस अल्लाह के आसमानों तले मौजूद हूँ जो अल्लाह ने खसूसी तौर पर मेरे लिए बनाया है, और मैं उसका एहसास रखकर उसके वजूद को तस्लीम करते हुए कुछ ऐसी जगह लपकना चाहता हूँ जहां मेरी पहुंच आज तक हो ही नहीं सकी, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अजीबो गरीब रास्ते खुलेंगे। बाज औकात तो इंसान यकीन नहीं करता कि मैं ऐसे रास्ते को अपनाऊं या ना अपनाऊं, लेकिन ऐसे रास्ते खुलते जरूर हैं। मुझ में ये कमी है कि मुझे ऐसा वक्त नहीं मिलता, ऐसी धूप नहीं मिलती, ऐसा लॉन नहीं मिलता कि जहां पर मैं हूं और मेरा पालनहार क्रिएटर हो, और कुछ ना कुछ उससे भी बात हो। इबादत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह खुद फरमाता है कि जब तुम नमाज अदा कर चुको तो फिर मेरा जिक्र करो।
लेटे हुए, बैठे हुए, पहलू के बल। यानी ये भी इजाजत दी कि जिस तरह से चाहो मर्जी करो। लेकिन आदमी ऐसा मजबूर है कि वो इस जिक्र से महरूम रह जाता है। कभी कभी ये सोचें कि इस वक्त मेरा अल्लाह कहाँ है, कैसे है। शहरत के पास तो है ही, लेकिन मैं क्यों खाली खाली महसूस करता हूँ। तो फिर भी आपको एक आवाज से, एक वाइब्रेशन से, जिसे बदन का इर्ताश कहते हैं, उससे पता चलता है। ये बड़े मजे की और दिलचस्प बातें हैं। लेकिन हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम इस तरफ जा ही नहीं सकते। और अल्लाह ने चाहा तो यूं यूं वक्त आगे बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर शऊर की लहरें और बेदार होती चली जाएंगी। हम पहुंचेंगे जरूर। जिस तरह केटू की बर्फों से बहने वाला एक छोटा सा नाला धक्के खाता हुआ, जुग्राफिया जाने बगैर, नक्शा लिए बगैर समंदर की तरफ जा रहा होता है और एक दिन समंदर में पहुंच जाता है, हम भी इंशाअल्लाह अपने समंदर के साथ जाकर जरूर हमकिनार होंगे। अल्लाह खुदावंद ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।